हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट माउंटेन सब एरे। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एरे गिवन है ऑफ एन एलिमेंट्स। हमें इन एन एलिमेंट्स में से सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन सब अरे फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो माउंटेन सब अरे क्या होता है? माउंटेन सब अरे एक ऐसा सब अरे है जिसमें पहले तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, फिर जब एक पीक एलिमेंट आ जाता है तो उसके बाद सारे एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एलिमेंट्स इंक्रीज ही होंगे इन अ लाइन, और जब डिक्रीज करने स्टार्ट करेंगे तो सबके सब डिक्रीजिंग में ही होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में आपको लेके बताती हूँ फॉर एन एरे 1 2, 1। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली ड्रॉ करूँ तो लेट्स से अगर ये मेरा ग्राफ पे पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है, तो first of all I'll mark it here, then the second point here and the third point will come here. So first it is increasing and then decreasing. Peak point इसका है ये 2. Okay, so this is my mountain sub array. तो इस mountain sub array की अगर मैं देखूँ तो लेंथ कितनी है? 3, because 3 elements इसके अंदर हैं। तो अगर इसी बात से हमें एक पॉइंट पता चलता है कि लेट्स से अगर मेरे अरे की लेंथ 1, 2 है तो मैं सिर्फ इंक्रीजिंग पार्ट ही बना पाऊंगी 1, 2। तो ओनली इंक्रीजिंग array will be there, decreasing part will not be there. अगर मेरा array है 2, 1, then only decreasing part will be there. So that means इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे mountain sub array चाहिए तो minimum length कितनी होनी चाहिए? at least 3, so that increasing और decreasing part दोनों आए। तो इसी के साथ हमारे पास एक कंडीशन ये भी आ जाती है इस प्रॉब्लम के अंदर, एक कंस्ट्रेन कि अगर हमारा n दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 3 है तब तो हम सिंपली अपना प्रोग्राम रिटर्न ही करवा देंगे। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। तो आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और समझ आएगा कि माउंटेन सब एरे लार्जेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एरे है 1, 3, 1 देन 4, 6, 5। सो लेट्स ड्रॉ दिस एज पर द ग्राफ 6 and 5. So as you can see, this is my peak element over here and this is also one peak element. Why? Because firstly this array keeps on increasing to this side and then it started to decrease under this. So first there is an increasing part and then decreasing part. So this entire is one mountain array and length of this mountain array is 3 because it has 3 elements in it. Now if you see, this is also an increasing part, right? So this is also decreasing part, so there is a peak element as well. So this is also a mountain array from 1 to 5. So if you calculate how many elements do it have, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So this mountain array is having 11 element. So which one is the largest? Largest is the 11 one. So my output out here will be 11. So this is what we have to find out. Input output is also given to us for this problem. You can see the 11 is the output, and if it is 2 2 2 the output is 0 because 2 2 2 will lie on the same plane and it is not a mountain array because there is no decreasing or increasing part, right? So now we will see how can we solve this problem, right? To solve this problem there are two approaches that we can follow. One is, first is the brute force approach. If you see how can we solve it using brute force? Using brute force what we can do is, simplest method is that using two loops, first of all we will find all subarrays, right? And then with one more loop we'll find whether it was a mountain subarray or not. Okay, so in total this approach will require 3 loops. Since it requires 3 loops, the time complexity would be order of n cube. Since there is no extra space used, the space complexity would be order of 1. See, order of n cube is a very huge high, time complexity is very higher. Now let's move on to the second. So the second approach is 2-pointer approach, and this is the diagram that we saw. This is the array that we saw earlier. The largest subarray, mountain subarray out here is the subarray having 11 length, right? Now let's see what we will do in 2-pointer approach. See, 2-pointer approach is an approach in which we use 2 pointers to solve a question, right? So let's take 2 pointers, one start and one as end pointer. Both pointers will be assigned -1 in the beginning. Okay, so start and end pointer. Start pointer will be used for increasing sub array to mark the beginning of increasing sub array, and end pointer will be used to mark the end of
decreasing subarray. Understanding my point? Let's see now. See here from यहाँ से मेरा इंक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट हुआ तो मैं इसे असाइन कर दूंगी स्टार्ट पॉइंटर, एंड यहाँ पे मेरा डिक्रीजिंग पार्ट एंड हुआ तो दिस ये हो जाएगा मेरा एंड पॉइंटर. तो आप देखो कि इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, राइट. तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक अलग पेन से इंडेक्सिंग कर देती हूँ सो दैट आवर कॉन्सेप्ट रिमेन्स क्लियर टू अस. सी with this red pen I have done the indexing part. So these are the indexes of my question 9, 10, 11, 12. So these are the indexing part. Now let's go. तो ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, राइट. तो स्टार्ट इज इंडेक्स 0, एंड इज इंडेक्स 2, राइट. सो if I have to calculate the length, what would I do? I would do end minus start plus 1. Why? Because the जो पॉइंट एंड वाला पॉइंट है उसको भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसलिए हम करेंगे +1. तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा 2 - 0 + 1 विच इज इक्वल टू 3, राइट. तो ये हमारी होगी लेंथ ऑफ द माउंटेन सब अरे. तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले माउंटेन सब अरे के साथ. अगर मेरा यहाँ से इंक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है तो इस सब अरे के लिए ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर होगा, राइट, फ्रॉम इंडेक्स 2, और ये वाला मेरा होगा एंड पॉइंटर लास्ट में, जो कि है एंड ऑफ डिक्रीजिंग सब अरे, ठीक है. तो एंड पॉइंटर मेरा होगा इंडेक्स नंबर 12. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1. तो एंड होगा मेरा 12 - 2 + 1 दैट वुड बी 11. तो मैक्सिमम कौन सा 11 और 3 में से 11. तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लेंथ का मैक्सिमम स्टोर करते रहना है. तो आपको समझ आया, मैंने स्टार्ट पॉइंटर लिया जो कि मेरा इंक्रीजिंग सब अरे का स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि मार्क करेगा स्टार्ट ऑफ इंक्रीजिंग सब अरे को, और जो एंड होगा वो एंड ऑफ डिक्रीजिंग सब अरे को मार्क करेगा. फिर हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे माउंटेन एलिमेंट की, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 करके. अब हमको ये देखना है कि हम स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स को मूव कैसे करेंगे और कैसे उनको असाइन करते रहेंगे, राइट. सो लेट्स सी. तो लेट्स गो नाउ. ये हमारा था अरे गिवन, और ये हमने ग्राफ में उसे ड्रा किया. यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग रेड मार्कर से मार्क कर दी है. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसेस इट फर्दर. मैंने क्या बोला, स्टार्ट इंडेक्स होगा स्टार्टिंग ऑफ इंक्रीजिंग एरे, और एंड इंडेक्स होगा एंडिंग ऑफ डिक्रीजिंग एरे. अब हम देखेंगे कि इसको मार्क कैसे करना है. पहले तो स्टार्टिंग में हमने दोनों को, स्टार्ट को और एंड को, दोनों को ही क्या मार्क किया है, -1, राइट. तो अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे. देखो, हम फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके n-1 तक, ठीक है. तब स्टार्टिंग में जब हमारे पास इंक्रीजिंग पोर्शन आएगा, जैसे कि ये एक इंक्रीजिंग पोर्शन है, तो जब ये इंक्रीजिंग पोर्शन आएगा दैट मीन्स इफ माय अरे ऑफ i + 1 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ i, राइट. इफ दिस इज माय अरे एंड अरे का i + 1th एलिमेंट अरे के ith एलिमेंट से ग्रेटर है, दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन 1, तो मेरी इंक्रीजिंग पोजिशन है. इंक्रीजिंग पोजिशन के टाइम पे मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो स्टार्ट है वो -1 है. दैट मीन्स अभी देखो, स्टार्ट अगर मेरा इक्वल टू -1 होगा, इसका मतलब अभी तक कोई इंक्रीजिंग पार्ट नहीं आया है, राइट. इसका मतलब कोई भी इंक्रीजिंग पार्ट अभी तक नहीं आया है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट को i असाइन कर देंगे, राइट. i मतलब वो करंट इंडेक्स, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे i था 0, तो मेरा यहाँ पे स्टार्ट असाइन हो चुका है. अब अंडरस्टूड दिस पॉइंट इतना, ठीक है. मैं साथ साथ में उसका लॉजिक भी लिख रही हूँ, ठीक है. तो अगर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि 3 इज लेस देन 1, तो मुझे डिक्रीजिंग पार्ट का देखना पड़ेगा. एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा कि अगर मेरा, ये कोड में हम बाद में देखेंगे बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरा अरे ऑफ i + 1 लेस है अरे ऑफ i से, ये केस होगा मेरा डिक्रीजिंग वाला, ये मेरा केस होगा इंक्रीजिंग केस, राइट. एंड जो ये केस है ये मेरा होगा डिक्रीजिंग केस, राइट. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा केस हो गया. डिक्रीजिंग केस के अंदर इस कंडीशन के लिए हम क्या मार्क करेंगे कि अगर मेरा स्टार्ट, देखो जब हमारे पास डिक्रीजिंग आया तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है कि स्टार्ट पार्ट भी आया हो, क्योंकि देखो अगर मेरा इंक्रीजिंग पार्ट आया है पहले फिर डिक्रीजिंग आया है तभी मेरा माउंटेन बन पाएगा ना.
अगर सिर्फ डिक्रीजिंग पार्ट ही आया ऐसे और मैं उसे माउंटेन में काउंट कर लूँ तो वो तो गलत है ना। तो दैट मीन्स जब मेरा डिक्रीजिंग पार्ट आएगा तो मुझे पहले ये चेक करना है कि क्या इंक्रीजिंग पार्ट आया था, राइट। वो कैसे चेक होगा, अगर मेरा स्टार्ट नॉट इक्वल टू -1 है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइंड है, तब मेरा इंक्रीजिंग पार्ट आ चुका है। अब इसका मतलब क्या है, स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू -1 अगर ट्रू है, दैट मीन्स माई इंक्रीजिंग पार्ट हैज कम, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 हियर, सो यस दिस इज ट्रू। तो फिर मैं एंड को क्या असाइन कर दूंगी, i+1, राइट। वाई i+1 हियर, बिकॉज क्योंकि i+1 क्या है, वो एलिमेंट जो डिक्रीज्ड है। i तो मेरा अभी 3 पे है ना, i इज ऑन 3, बट एरे ऑफ i+1 इज लेस देन एरे ऑफ i, मतलब कि 1 जो है वो 3 से लेस है, तो डिक्रीजिंग पार्ट कौन सा हुआ, 1 ना, इसलिए हमको एंड को i+1 पे असाइन करना है। दैट मीन्स ये हो गया मेरा एंड यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर मेरा, अब कंडीशन लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, जब मेरी लेंथ कैलकुलेट होगी ना इन दोनों इफ एल्स के बाहर आके, तो मैं ये चेक करूंगी कि इफ माई, लेट मी राइट इट विद सम अदर पेन, so if my end is not equal to -1 and start is not equal to -1, अब इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन हो गई है। उस केस में मेरा आंसर क्या होगा, एक तो मैक्स ऑफ आंसर मतलब जो प्रीवियस आंसर था वो, कॉमा जो मैंने आपको बताया एंड माइनस स्टार्ट +1, ये होगा। तो अभी इस पॉइंट पे मेरा आंसर कितना निकलेगा, एंड कितना है मेरा, यहाँ पे एंड का इंडेक्स क्या है 2, तो 2 - 0 + 1, अरे क्या बना 2 - 0 + 1 क्या बना 3, राइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन अगर मुझे अब नेक्स्ट चलना है, अब देखते हैं आगे क्या ये कंडीशन सारी की सारी सफिशिएंट है मेरे लिए, नो, लेट्स सी हाउ। देखो जब मेरा 4 ग्रेटर देन 1 आया फिर से, राइट, ये वाली कंडीशन आ गई, अरे ग्रेटर देन 1, तो यस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू -1 तभी आप स्टार्ट को आई करो, राइट। बट अभी मेरा स्टार्ट तो -1 नहीं है, तो मैं दोबारा से नया माउंटेन कैसे चेक करूँ, तो ये मेरी जो कंडीशन मुझे रोक रही है, तो मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, अंडरस्टैंड। तो वो कंडीशन क्या होगी कि अगर एंड आ चुका है, जैसे ये एंड पहले आ चुका है, दैट मीन्स एक माउंटेन कंप्लीट हो गया। एक माउंटेन कंप्लीट होने की कंडीशन क्या है कि स्टार्ट भी आ गया और एंड भी आ गया, स्टार्ट तो यहाँ पे चेक हो ही रहा है, तो अगर एंड आ गया तो दैट मीन्स एक माउंटेन कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूंगी, इफ एंड इक्वल्स टू इफ एंड नॉट इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स कि अभी एंड आ चुका है। तो इस केस में आप क्या करो, दोनों को फिर से री इनिशियलाइज कर दो -1 पे, रीसेट कर दो। वाई, बिकॉज मेरा एक माउंटेन कंप्लीट हो चुका है, मुझे नेक्स्ट माउंटेन फाइंड करना है, और ये वाली कंडीशन ऊपर इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले हम ये चेक करेंगे फिर हम स्टार्ट चेक करेंगे, अदरवाइज वो उसी को चेक करता रहेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे मेरा फिर से स्टार्ट असाइन हो जाएगा, राइट। एक बार स्टार्ट मेरा आई पे असाइन हो गया, फिर तो ये इंक्रीजिंग चलता ही जा रहा है मेरा 9 तक। फिर जब ये 9 पे पहुंचेगा और डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो हर बार देखिए, हर बार मेरा जो एंड है वो असाइन होता जाएगा। ये पहले एंड यहाँ पे असाइन होगा बिकॉज 8 इज लेस देन 9, फिर 7 इज लेस देन 9, फिर एंड यहाँ पे आएगा, फिर एंड यहाँ पे आएगा, और एट लास्ट मेरा एंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर लास्ट में इस पूरे लूप के बाहर हमको ये लेंथ फिर से फाइंड आउट कर लेनी है, विच वुड बी एंड माइनस स्टार्ट +1, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 12। ये था एंड इंडेक्स और स्टार्ट इंडेक्स था 2, तो ये आएगी 12 - 2 + 1 विच वुड बी 11। तो आई होप आपको ये समझ आया है। साथ साथ में हमने कोड का भी थोड़ा सा देखा लॉजिक। अब हम कोड को लिखेंगे, राइट। कोड पार्ट, ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन, ये रिटर्न करेगा लेंथ जो कि हमारी स्टोर होगी वैल्यू r में, और वही हमें आउटपुट करना है। लेट्स गो, अब हम ये फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन के अंदर एक अरे आ रहा है और n एलिमेंट्स आ रहे हैं इनपुट। तो पहली कंडीशन जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये n की वैल्यू लेस देन 3 होगी, तब हम क्या कर देंगे, इस केस में हमको क्या करना है, हमको करना है रिटर्न 0, दैट मीन्स लेंथ हमारी 0 ही होगी इस केस में माउंटेन की। और फिर 2 पॉइंटर अप्रोच क्या थी जो हमें लगानी है, अभी एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे, उसे -1 इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद एक एंड पॉइंटर लेंगे, उसे भी -1 इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एक इंटीजर होगा जो कि आंसर स्टोर करेगा, दैट वुड बी माई लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट माउंटेन। और उसके बाद मुझे फॉर लूप यूज़ करना है फ्रॉम
I equal to 0 to I less than n minus 1 I plus plus, that is covering all the elements of my array. एंड उसमें मैं अंदर चेक करूँगी कि अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ़ माई अरे ऑफ I प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ I, दैट मीन्स मेरा अगर इंक्रीजिंग सब अरे पार्ट चल रहा है तो मैं पहले चेक करूँगी कि क्या पहले कोई मेरा माउंटेन कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स इफ़ एंड नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स कोई भी एक माउंटेन पहले कंप्लीट हो चुका है. उस केस में मैं दोबारा से स्टार्ट को और एंड को रीसेट कर दूँगी. राइट, अब दोनों दोबारा से -1 हो चुके हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेरा स्टार्ट अभी स्टार्ट हो चुका है या नहीं. अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ इक्वल टू -1, अभी कोई माउंटेन हमारा इंक्रीजिंग अरे नहीं आया है, तो उस केस में मैं स्टार्ट को उस गिवन इंडेक्स I पे असाइन कर दूंगी. ओके, तो उसके बाद मेरा यहाँ पे इफ़ के बाद एल्स कंडीशन आएगी, जिसमें मैं चेक करूँगी कि अगर मेरा अरे ऑफ I प्लस 1 लेस देन है अरे ऑफ I से, दैट मीन्स मेरा डिक्रीजिंग अरे सब अरे यहाँ पे चल रहा है. तो मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा स्टार्ट नॉट इक्वल टू -1 है. दैट मीन्स मेरा इंक्रीजिंग पार्ट पहले आ चुका है, अब मुझे डिक्रीजिंग पार्ट का इंडेक्स स्टोर करना है. दैट इज एंड इक्वल्स टू 1 प्लस 1 I प्लस 1. तो इसके बाद मैं चेक करूँगी कि क्या अगर मेरे दोनों पॉइंटर्स -1 नहीं हैं, दैट मीन्स मेरा इंक्रीजिंग अरे भी आ चुका है और मेरा डिक्रीजिंग अरे भी आ चुका है. राइट, इस केस में मैं लेंथ फाइंड आउट करूँगी. नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास. तो इस केस में मैं क्या करूँगी, फाइंड आउट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1. ओके, और फिर हमारे पास एल्स खत्म हो गया. राइट, इस एल्स के ही अंदर एक और एल्स आएगा. दैट मीन्स कि वो हमारा इंक्रीजिंग पोर्शन नहीं, डिक्रीजिंग पोर्शन नहीं था. अगर इंक्रीजिंग के बाद देखो, अगर इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग जस्ट आफ्टर नहीं आया, तो उस केस में हमको फिर से रीसेट करना होगा स्टार्ट और एंड. अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग पोर्शन का इंडेक्स कुछ और ही है और डिक्रीजिंग का कुछ और है, वो कंबाइंड नहीं है. तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ये पोर्शन, सो दैट हमारे पास चीज़ें कंबाइंड ही आए. ओके, तो हम फॉर लूप के बाद, जो प्रॉपर फॉर लूप है ना, उसके बाद निकल के बाहर, तब भी हम अगर लास्ट में हमारा इंडेक्स असाइन हुआ है ना, तो वहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे कि क्या मेरा, क्यों हम फिर से चेक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो एंड है ना वो मेरा लास्ट पे आ जाए, लास्ट इंडेक्स पे आ जाए, तो वो फॉर लूप में कवर नहीं होगा. इसलिए हम ये बाहर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए, कोई माउंटेन सब अरे लास्ट में रह गया तो. सो दैट मीन्स इफ़ माई एंड इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक माउंटेन अरे हमारे पास है. तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर से यही सेम. आई होप आपको ये जो हमने यहाँ पे रीसेटिंग की है, ये इसका समझ में आया हो कि यहाँ पे क्यों लिखा है, सो दैट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सब अरे साथ में आए, डिफरेंस नहीं हो उनमें कोई भी इंडेक्सिंग का. सो दिस इज रिटर्न आंसर. तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर. तो अगर आप देखो तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी होगी, एक ही फॉर लूप यूज़ हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ n, अगर n एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंस हम कोई भी एक डिफरेंट अरे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1. तो लेट्स गो, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास. तो इसकी वैल्यू आई है 4. तो 4 देखिए आप, क्या इसका 4 बनता है. येस, 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा एक माउंटेन सब अरे ही है. नाउ लेट 8, 7, 6, 5. सो ये थी हमारी वो एग्जाम्पल. और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए, 3, 6, 9, 12, 13. सो लेट्स गो नाउ. सो द वैल्यू इज 11 और हमारा लार्जेस्ट माउंटेन भी क्या था, 11. तो आई होप आपको ये समझ आया है. थैंक यू. इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. वील कीप पोस्टिंग सच प्रोग्राम क्वेश्चंस. थैंक यू.